स्टूडेंट्स वी विल सी हाउ शिफ्ट बेसिस आर फॉर्म्ड. सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे फॉर एल्डिहाइड. ठीक है, वी हैव जनरल मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी अमाइन. फॉर एग्जांपल वी हैव RNH2. वी हैव प्राइमरी अमाइन व्हेन इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मॉलिक्यूल एल्डिहाइड. ठीक है, जब ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे देन final product which is formed is a Schiff base, that is imine. R N double bond CH R. ठीक है, इमीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन. दिस इज नोन एज इमीन. इमीन. ठीक है, imine since it is formed by aldehyde, so this is aldimine. Aldimine. ठीक है, aldimine, or we can say it is a Schiff base. Schiff base. Right, students? Now we understand this reaction with the help of an example. अब हम एक example देखेंगे इस reaction को understand करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इथाइलमाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इथाइलमाइन का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ किस तरह से होता है. वी हैव इथाइलमाइन CH3 CH2 NH2. इथाइलमाइन. ठीक है, एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3 C double bond O H. दिस इज एसिटल्डिहाइड. Now reaction in the forward direction, किस तरह से reaction होता है. In the forward direction here we have CH3 CH2 N. यानी यहाँ तक हम पूरा रिएक्शन वही लिखेंगे जो कि हमारे पास पूरा पार्ट हम जो है प्राइमरी अमाइन का एज इट इज़ लिखेंगे. और यहाँ पे N इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद कार्बोनाइल कार्बन. C double bond and double bond with this carbon. Right students, and on one side of carbon we have hydrogen atom while on other side we have methyl group. ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3. right, this is imine or Schiff base. Aldimine. Aldimine or Schiff base. Aldimine or Schiff base. Right students, I hope this reaction is clear to you. Now students, we will see how ketones react with primary amines to form Schiff base. सबसे पहले ketones के लिए हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे. We have general molecule of primary amine that is RNH2. ठीक है, and here we have ketone R C double bond O R. जब ये ketone से react करेगा then after the reaction we have R N and there is a double bond between carbon and nitrogen. Right students, and on one side of carbon we have alkyl as well as on other side we have alkyl. Since this is a Schiff base, this is imine. ये imine क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है. This imine is formed by ketone, that's why it is known as catimine. Catimine. Imine. Right, it is also a Schiff base. Schiff base. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव इथाइलमाइन. हमारे पास इथाइलमाइन है CH3 CH2 NH2. वी हैव इथाइलमाइन. वी रिएक्ट इथाइलमाइन विद अ कीटोन. फॉर एग्जांपल वी टेक एसीटोन CH3 C double bond O CH3. This is acetone students. Now we will see how imine is formed. We will write the alkyl part which is attached with nitrogen. Which alkyl part is attached with nitrogen here? Ethyl. CH3 CH2. Then we write nitrogen. Then we make double bond between nitrogen as well as carbon. That is carbonyl carbon. ठीक है? And on one side of this carbonyl carbon we have methyl group. On other side we have methyl group. This is imine students. ठीक है, since this imine is formed by ketone that is acetone, that's why this imine is known as catimine. This imine is formed by acetone that is ketone, that's why this imine is known as catimine. So we write this its name, that is catimine.
This is a Schiff base. I hope this reaction is clear to you students. नाइट्रस एसिड को जब अमाइंस के साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बनता है. सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बनेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव एनिलीन, हमारे पास एनिलीन है दैट इज C6H5NH2. ठीक है, एराइल अमाइन एनिलीन. जब हम इसको रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, then we get benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is formed C6H5N triple bond NCl minus, right? This is benzene diazonium chloride as well as water. Which product is formed here students? This is benzene diazonium chloride. ठीक है. या अगर हमारे पास अल्काइल अमाइन है तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अल्काइल अमाइन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अल्काइल अमाइन आर NH2. ठीक है ना, अल्काइल अमाइन है हमारे पास और हम इसका रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. Here we write HCl. Right students. Now after the reaction here we get diazoniamine, that is R N triple bond N. With this nitrogen they have plus charge and chloride. ठीक है ना, diazonium chloride ion plus water. So in this way we get diazonium salt by reacting amines with nitrous acid in the presence of HCl. डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारे पास बनते हैं दीज सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल. बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं. जैसे ही बनते हैं फ़ौरन डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है ना, और डिकम्पोज होने के बाद दे गिव नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं. इसके साथ साथ दे फॉर्म कार्बोकैटाइन एज वेल एज क्लोराइड आयन. तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिकम्पोज होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, that is we have R N triple bond N, right? There is a plus charge and Cl minus. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट. तो डिकम्पोज होने के बाद इट विल फॉर्म कार्बोकैटाइन प्लस क्लोराइड आयन प्लस नाइट्रोजन. ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. अब हमारे पास वी गेट हेयर कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन जो हमारे पास बन गया है, ठीक है, हम देखते हैं कि कार्बोनियम आयन जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है. बनेंगे या अगर कार्बोकैटाइन हैलाइड आयन से रिएक्ट करेगा वी गेट अल्काइल हैलाइड्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स.